Wonderful greetings to each and every one of you, my dear sons and daughters, brothers and sisters. I trust all of you are well and good today. मेरे प्यारे बेटे बेटियों, भाइयों बहनों, आप सबको बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। I thank you for the letters that you write telling me that you are very much stirred in your spirit when you watch this program. मैं उन खतों के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें आप कहते हैं कि आपके आत्मा में आप एक उत्साह को महसूस करते हैं जब इस कार्यक्रम को आप देखते हैं। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. मेरे प्यारे बेटे बेटियों, भाई बहनों, When the kingdom of God comes, जब प्रभु का राज आएगा, when the kingdom of God comes within you, जब प्रभु का राज आपके अंदर आ जाएगा, it will cause the river of peace, joy and love to flow all within you. तो वो शांति, आनंद और प्रेम का जो नदी है उसे आपके अंदर से बहने को करेगा। And the more you linger in the presence of God, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में वास करेंगे, and the more it will begin to flow in intensity. उतनी ज्यादा सामर्थ्य से वो आपके अंदर से बहने लगेगा। Initially, the rivers flow inside you at the ankle level. सबसे पहले ये नदी जो आपके अंदर बहती है वो आपके एड़ियों तक होगा। Then as you begin to press on with God, it increases to the knee level. और जब आप और ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताने लगेंगे तो वो आपके घुटनों तक आ जाएगा। And the more you begin to worship God in spirit and in truth, the anointing, the level of the river flows to the waist level. और जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और आराधना और स्तुति में समय बिताते हैं, वो अभिषेक आपके कमर तक उठकर आ जाएगा। And then when you begin to worship the beauties of God's holiness, the anointing increases up to your neck, even submerge. और जब आप परमेश्वर की पवित्रता की सुंदरता की आराधना करने लगेंगे, तब वो नदी और भी भर के आपके गर्दन तक आ जाएगा और आपको डुबा देगा। At that point, the river flows out of you. उस क्षण नदी आपके अंदर से बाहर बहने लगेगा। Peace flows out of you. आपके अंदर से शांति बहने लगता है। Joy flows out of you. आनंद आपके अंदर से बाहर बहेगा। And love flows out of you. और आपके अंदर से प्रेम बहेगा। And people will be able to see all that in you. और लोग वो सभी चीजों को आपके अंदर देखने लगेंगे। That is the manifestation of the kingdom of God, because you serve in it as a royal priesthood. क्योंकि आप एक राजकीय याजक के नाई उनके सामने सेवा करते हैं, ये परमेश्वर का राजा आपके अंदर से प्रकाशन होगा। This is a very important call that God is giving to all His dear children. ये एक बहुत ही खास बुलावट है जो परमेश्वर अपने सारे बच्चों को देते हैं। The order of the Melchizedek. मेल्कीजेदेक की रीति पर। The order of the Melchizedek means we become members of the Melchizedek group. मेल्कीजेदेक की रीति के अनुसार ये है कि हम मेल्कीजेदेक का जो झुंड है उसका एक भागी बन जाते हैं। So who can become members? तो इसके भागी कौन बन सकते हैं? All those who have the kingly and priestly anointing. वो सभी जिनके ऊपर राजकीय और याजकीय अभिषेक है। By saying that, your mind should think on 1 Peter chapter 2 verse 9. जब मैं ये कहता हूँ तो आपके मन को पहला पत्रस 2:9 के बारे में सोच लेना चाहिए। Where the scripture says we are made a royal priesthood. जहाँ वचन कहता है कि हमें राजकीय याजक बनाया गया है। So royal is kingly and priesthood. राजकीय का मतलब है राजा का और याजक। So all those who truly walk after the Lord have this kingly and priestly anointing. तो वो सभी लोग जो परमेश्वर के पीछे सच्चाई के साथ चलते हैं, उनके ऊपर ये राजकीय और याजकीय अभिषेक है।
You know, there are some deep mysteries why God is giving us these two anointing. ऐसे बहुत ही गहरे रहस्य है जो बताते हैं कि परमेश्वर ये दो अभिषेक को हमें क्यों देते हैं। Okay, we'll go into that mystery now. इस रहस्य के अंदर हम जाएंगे। Kingly means you are ruling and reigning. राजकीय का मतलब ये है कि आप राज्य कर रहे हैं और आप शासन कर रहे हैं। This is the authority that was given to Adam in Genesis chapter 1 verse 26. ये वही अधिकार है जो आदम को उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने दिया था। So God told him he has authority over the air, over the land and over the sea. परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके पास अधिकार है आसमान के ऊपर, धरती के ऊपर और सारे समुद्र के ऊपर। So that means Adam was made to be the king of this whole world. इसका मतलब ये है कि आदम को इस पूरे संसार का राजा बना दिया था। Since sin was not there at that time, और क्योंकि पाप उस समय में नहीं था, so the concept of a priest praying unto God or giving sacrifices was irrelevant there. तो ये बात कि याजक परमेश्वर से प्रार्थना करे या बलिदान चढ़ाए, ये सारी बातें उन समय में कोई मान्य नहीं रखती थी। So instead of that, there was another grace. तो उसके जगह में एक दूसरा अनुग्रह था। It is the grace to be a son of God. ये वो अनुग्रह है जिसके कारण आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। If you read the genealogy of the Lord Jesus Christ in Luke Gospel, you'll find that it's written, Adam, the son of God. अगर आप लूका में प्रभु यीशु मसीह का जो वंशवाली है उसे पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लिखा गया है कि आदम परमेश्वर का बेटा था। Just like how the Lord Jesus Christ is now seated at the right hand of God as a co-ruler, that was the original call given to Adam. उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर इस पूरे संसार का शासन करते हैं, आदम की बुलावट भी यही थी। वो परमेश्वर के साथ सारे संसार का राज्य करने वाला था। Sadly, through sin, Adam lost both the kingly and the sonship anointing. दुख की बात यह है कि पाप के कारण आदम ने दोनों बातों को खो दी, राजकीय अधिकार और परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार। So then, after sin, God introduced this concept of offering sacrifices so that man can come back into fellowship with God. तो पाप के आने के बाद इस बात को बनाया गया कि लोग बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से वापस आ सकते हैं। So little by little, God was progressively maturing them to come to the place where they can be a king and a priest. तो थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर उन लोगों को बढ़ा रहे थे ताकि वो इस जगह पे पहुंच जाए जब वो सचमुच में एक राजा का अधिकार प्राप्त कर सके। 1445 years later, God feels that now that time has come to make them a king and a priest. 1445 सालों के बाद परमेश्वर को ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है कि लोगों को परमेश्वर के राजकीय याजक बना दिया जाए। At Mount Sinai, God makes a covenant with the children of Israel. सिनाई के पर्वत पर इजरायली बच्चों के साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी। He tells them, if you obey me and keep my covenant, I will make you a peculiar people and a kingly priest. परमेश्वर ने कहा कि अगर आप वो लोग बनेंगे जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और मेरे सारे वाचाओं को पूरा करेंगे, तो मैं आपको एक विशेष लोग और राजकीय याजक बनाऊंगा। So, how is it possible for God to extend that invitation to them? ये कैसे मुमकिन है कि परमेश्वर ऐसे एक आमंत्रण को उन्हें देते हैं? Because now they are made righteous by the sacrificial offering system. अब जो बलिदान का जो भेंट है उसके द्वारा वो धार्मिक बनाए गए हैं। So this brings us to the next thing that we get when the kingdom of God comes within us.
तो इसके द्वारा हम उस बात को अब समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आएगा तो इसके आगे क्या होने वाला है। The Holy Bible tells us in Romans chapter 14 verse 17 that the kingdom of God is righteousness. पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो 14 उसके 17 में कि परमेश्वर का जो राज्य है वो धार्मिकता है। What do we mean by righteousness? धार्मिकता से हम क्या समझते हैं? Righteousness is right standing before God. धार्मिकता का मतलब है कि परमेश्वर के सामने बिल्कुल ही सही तरीके से हम खड़े रह सके। Have you seen a palm tree? क्या आपने एक नारियल के पेड़ को देखा है? It grows straight upright. वो बिल्कुल ही सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है। Except for one or two crooked bending palm trees, the rest of them are upright at 90 degrees. एक या दो टेढ़े नारियल के पेड़ हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे नारियल के पेड़ बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर बढ़ते हैं। That is why the Bible says the righteous shall stand like the palm tree. इसीलिए बाइबल कहता है कि धार्मिक जो है वो पेड़ के समान फलवंत होगा। So you are upright. तो आप सीधे हैं। There's no crooked ways within you. आप में कुटिलता बिल्कुल नहीं है। You are a person of honesty and integrity. आप एक ईमानदार और अखंडित इंसान हैं। Your hands are clean and your walk is clean. आपके हाथ साफ है और आपकी चाल चलन बिल्कुल साफ है। And do you remember last week I mentioned to you about how apostles Paul and Silas, when they were in the Philippian jail, they were just singing for joy because God's peace and His love had flooded them. आपको याद है पिछले बार मैंने आपको बताया कि प्रेरित पौलुस और सिलास जब फिलिप्पी के जेल में कैदी थे तो वो कितनी स्तुति और आराधना कर रहे थे क्योंकि उनका हृदय शांति और आनंद से भरा हुआ था। So when the peace and the joy and the love of God flowed out of them, it demonstrated the power of God. तो जब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आनंद और परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर से उमड़कर बहने लगा तो उसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ का प्रकाशन हुआ। An earthquake occurred in the jail and all the gates were opened, the prison doors were opened and all the chains from their hands and their legs fell off. जेल में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया और सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां खुल गई और उनके हाथ, पैर और गर्दन में जो जंजीरें लगी हुई थी वो सब टूटकर गिर गई। And the jailer thought everyone had escaped and he wanted to commit suicide. जेल के रखवाले ने भी ये सोचा कि सब लोग भाग गए हैं और वो आत्महत्या करने वाला था। And the apostle Paul shouted at the jailer saying, "No, don't commit suicide. We are all here." प्रेरित पौलुस ने चिल्लाकर कहा कि अपने आप को मत मार, हम सब यही हैं। No one of the prisoners have escaped. एक भी कैदी भागा नहीं है। So what made the apostle Paul and Silas not to escape? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण प्रेरित पौलुस और सिलास वहां से भागे नहीं? Because they were righteous before God. क्योंकि वो परमेश्वर के सामने धार्मिक थे। They were upright before God. वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल सीधे थे। You know, something similar we read in Acts chapter 12. ऐसे एक बात को हम प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। The apostle Peter was arrested and waiting to be beheaded. प्रेरित पतरस कैद किया गया और उसके सर को काटने की वो इंतजार कर रहा था। And in the middle of the night, an angel of the Lord appeared, and all the chains and the bonds on the apostle Peter fell off. आधी रात में एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और प्रेरित पतरस के ऊपर जो भी जंजीर थी वो सब गिर गया और वो छुड़ाए गए। Then the angel brought the apostle Peter out of the jail and into the city. उसके बाद स्वर्गदूत प्रेरित पतरस को जेल से बाहर निकाल आया और शहर में ले गया। But in Paul's case, no one did that. लेकिन पौलुस के जीवन में किसी ने ऐसे नहीं किया। So as a righteous man, he just stood in the jail. तो धार्मिक व्यक्ति होने के कारण वो जेल में वैसे ही खड़ा रहा। You must become a doer of righteousness. आपको धार्मिकता के काम करने वाला बनना है। So what do we mean by a doer of righteousness? तो धार्मिकता के काम करने वाले का क्या अर्थ है? That is doing works of righteousness, righteous works
according to what the Bible tells us to do. तो वो इस प्रकार के धार्मिक काम को करना है जो हमें बाइबल बताती है। When you begin to walk in this righteousness of the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य के धार्मिकता के अनुसार चलना शुरू करेंगे, you will become a doer of righteousness. आप धार्मिकता के काम करने वाले बन जाएंगे। And that righteousness of God's kingdom will enable you to judge others in righteousness. परमेश्वर के राज्य का जो धार्मिकता जो आपके अंदर वास करता है, वो आपको ऐसी सामर्थ देगी कि आप दूसरों को धार्मिकता के साथ न्याय कर सकेंगे। That is the Melchizedek anointing. यही मेल्किजेदेक का अभिषेक है। The kingly anointing also includes to judge righteously. राजकीय अभिषेक में धार्मिकता के साथ न्याय करना भी शामिल है। Amen. आमीन। This we see in King Solomon's life. हम इसे सुलेमान राजा के जीवन में देखते हैं। There's this very famous story about King Solomon. सुलेमान राजा के बारे में ये कहानी बहुत ही मशहूर है। Two women came to King Solomon for judgment. न्याय के लिए दो स्त्रियां सुलेमान राजा के पास आए। And they had one baby in their hand and both of them claimed that the baby was theirs. उनके हाथ में एक बच्चा था और दोनों ने कहा कि ये बच्चा उनका था। Both women gave birth to babies on the same day. दोनों स्त्रियों ने एक ही दिन बच्चों को जन्म दिया। One woman's baby died while the other baby survived. एक स्त्री का जो बच्चा था वो मर गया, लेकिन दूसरे का बच्चा जीवित रह गया। The mother of the dead baby stole the baby that is living while her mother was sleeping. वो माँ जिसका बच्चा मर गया था, उसने उस बच्चे को चुरा लिया जो जिंदा था जब उसकी माँ सो रही थी। And she put the dead baby beside the sleeping mother. और सोने वाली माँ के बगल में उसने मरे हुए बच्चों को रख दिया। So when the mother woke up, she saw her baby was dead. तो जब माँ उठी तो उसने देखा कि उसका बच्चा मरा हुआ है। But she knew this is not her baby. लेकिन वो जानती थी कि ये बच्चा उसका नहीं है। But the other woman claimed, no, this is your baby that died. लेकिन दूसरी स्त्री ने ऐसे कहा कि नहीं, जो मरा है वो तुम्हारा बच्चा है। So this matter went before King Solomon. तो ये जो बात है उसे राजा सुलेमान के पास ले जाया गया। Solomon heard their case. सुलेमान ने इनकी बातों को सुना And he pondered quite deeply. बहुत गहराई से सोचने लगा। And then he came with a solution. फिर एक उपाय लेकर आया। Since both women are claiming this baby as theirs, क्योंकि दोनों स्त्रियां कह रही हैं कि ये बच्चा उनका है, so the king ordered the soldier to cut the baby into two and give one half to one woman, another half to another woman. तो राजा ने अपने सैनिक से कहा कि इस बच्चे का 2 भाग कर दो और एक भाग को एक स्त्री को दे दो और दूसरे भाग को दूसरी स्त्री को दे दो। When the false mother heard that, she said, "Yes, hallelujah! Kill the baby and give me one half." तो झूठी माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, हाँ हालेलुया, इस बच्चे को मार दो और आधे हिस्से को मुझे दे दो। But the true mother fell at King Solomon's feet and cried to him, "Please don't kill the baby. Give the baby to her." जो सच्ची माँ है वो राजा सुलेमान के कदमों पर गिर गई और रोने लगी और कहने लगी कि बच्चे को मत मारो, इसे उस स्त्री को ही दे दो। She says, "King, let my child live." उसने कहा, राजा मेरे बच्चे को जीने दो। So King Solomon then knew who is the true mother. तो सुलेमान राजा समझ गए कि कौन असली माँ है। A true mother always will plead and work so hard to protect her baby. जो सच्ची माँ है वो हमेशा विनती करेगी और जो हो सकता है करेगी कि उसका बच्चा बच जाए। How was King Solomon able to make such a righteous decision? राजा सुलेमान ऐसे एक धार्मिक निर्णय को कैसे ले सके? It is the wisdom of the kingdom of God that was within him. उनके अंदर परमेश्वर के राज्य का जो ज्ञान है वो भरा हुआ था। That enabled him to judge righteously. उसी के कारण वो धार्मिकता से न्याय कर पाए। This is the Melchizedek anointing. यही मेल्किजेदेक का अभिषेक है। The kingly and the priestly anointing will enable you to be a doer of righteousness and to judge in righteousness. राजकीय और याजकीय अभिषेक जो है वो आपको ऐसी सामर्थ देगा कि आप धार्मिक काम करेंगे और धार्मिक न्याय करेंगे। Amen. आमीन। God bless you all till we meet in the next lesson.
अगले पाठ में जब हम मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, तुझे आराधना यीशु तुझे। Oh Lamb of God, oh, 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 oh. जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर
चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, यीशुआ, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।